توفیق سے ہم اس کے گھر میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان، حدثنا محمد بن آرا قال حدثنا شعبہ عن زبید قال سألت ابا وائل عن مرجنا قال حدثني عبد الله ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ امام بخاری محمد بن عرا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں شعبہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے زبید سے، انہوں نے ابو الوائل سے مرجنا کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت عبداللہ نے حدیث بیان کی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ اپنے والدین کو گالی نہ دیا کرو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے والدین کو کون گالی دیتا ہے؟ فرمایا جب تم کسی کے والدین کو گالی دیتے ہو اور وہ بدلے میں تمہارے والدین کو گالی دیتا ہے تو سمجھو تم خود اپنے والدین کو گالی دے رہے۔ تو گالی دینا گناہ ہے اور قتال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، قتل کرنا یہ کفر ہے۔ اب اس کفر سے مراد محدثین نے لکھا ہے کہ دائرہ اسلام سے اس کو خارج نہیں سمجھا جائے گا، لیکن اتنی بات ہے کہ کسی نہ کسی اگر اس نے توبہ نہ کی تو اس کا مآل جو ہے، انجام جو ہے وہ کفر میں ہوگا۔ بظاہر وہ مسلمان ہی ہے لیکن اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جائے گی کہ وہ کفر کی طرف پلٹے گا، کیونکہ المومن للمومن اخوہ، مومن مومن کا بھائی ہے، اور اگر وہ اس کو تنگ کرتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور اگر کسی سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائیں تو پھر اس کا کیا ایمان ہے، اس کا کیا اسلام ہے؟ تو یہ بظاہر ہمارے ہاں بڑا معمولی ہے لیکن حقیقت میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ لڑے رہنا، اس کو گالی دینا، اس سے لڑائی جھگڑا کرنا، یہ حالت کفر کی طرف پلٹاتا ہے۔ اور پھر اگلی روایت ہے، حضرت عبدہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے باہر نکلے، دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، سو آپ نے فرمایا میں تم کو لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے نکلا تھا، بے شک فلاں اور فلاں نے جھگڑا کیا تو اللہ نے لیلۃ القدر کی تعیین کا علم اٹھا لیا، اب تم اس کو تاخیراتوں میں تلاش کرو۔ یعنی اتنی بہت بڑی نعمت ہے لیلۃ القدر، اس کا تعین حضور کر کے بتانے والے تھے، تو لوگوں کے لڑائی کی نحوست کی وجہ سے وہ علم اٹھا لیا۔ تو جہاں دو لوگوں کے لڑنے کی نحوست کا یہ انجام ہے، وہاں پر اندازہ کریں برکت ختم ہو گئی، ایک بہترین علم اٹھا لیا، وہاں گھر میں میاں بیوی کا ہر وقت لڑتے رہنا کس قدر نحوست کا سبب بنے گا، دو بھائیوں کا لڑتے رہنا، دوستوں کا لڑتے رہنا، پڑوسیوں کا لڑتے رہنا، وہ کس قدر نحوست کا سبب بنے گا، برکت کہاں سے آئے گی؟ نحوست کا متضاد جو ہے وہ برکت ہے، گویا برکت ختم ہو جائے گی، سکون ختم ہو جائے گا، خوشحالی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وبال ہے لوگوں کے آپس میں لڑنے کا کہ لیلۃ القدر کی تعیین کا علم اٹھا لیا۔ اور اگلی روایت ہے، حضرت جبریل امین حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن
हजूर लोगों के सामने बैठे हुए थे, बस आपके पास हजरत जिब्रील आए। सो आपसे पूछा ईमान की क्या तारीफ है। आपने फरमाया ईमान ये है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके फरिश्तों पर, अल्लाह से मुलाकात पर, उसके रसूलों पर ईमान लाओ और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर ईमान लाओ। उन्होंने पूछा और इस्लाम की क्या तारीफ है। आपने फरमाया इस्लाम यह है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक न करो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। उन्होंने पूछा एहसान क्या है। ईमान, इस्लाम और एहसान। एहसान क्या है। आपने फरमाया तुम अल्लाह की इस तरह इबादत करो गोया कि उसको तुम देख रहे हो, यानी तुम्हारी तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए, ध्यान उसकी तरफ हो। और अगर तुम उसको न देख सको तो ये यकीन रखो कि वो तुम्हें देख रहा है। ये कैफियत फिर बंदे को अल्लाह के करीब करती है। नमाज में ये कैफियत हो कि मैं रब को देख रहा हूं या रब मुझे देख रहा है, तो फिर उस हाल में खुदा की बारगाह में झुका जाए, तो ये एहसान है। गोया ये इबादत का हुस्न है। ईमान और इस्लाम बता दिया और एहसान से इबादत का हुस्न पैदा होता है। इबादत हकीकी मानों में खुदा की बारगाह में दर्जा कबूलियत पर फैज होने के लिए तैयार होती है। तो फिर उसके बाद उन्होंने पूछा क़यामत कब होगी। आपने फरमाया जिससे इसका सवाल किया गया है वो सैर से ज्यादा जानने वाला नहीं है। गोया साइल भी इसको जानता है और मैं तुमको अनकरीब इसकी अलामतों की खबर दूंगा। अब अलामतें क्या हैं। जब बांदी से उसका मालक पैदा हो, अब यानी लौंडी से मालक पैदा हो। अब इसकी तशरीह और ताबीर में ये कहा गया है कि लोग अपनी माओं को लौंडियां समझेंगे। फलां काम करो, पानी मुझे ला कर दो, फलां चीज दिलाओ, मेरे कपड़े प्रेस करो, मेरे जूते साफ करो, मेरे जूते पॉलिश करो, मुझे फलां फलां। जैसे लौंडियों से काम लिया जाता है, माओं से वैसा काम लिया जाएगा, ऑर्डर किया जाएगा। अब बेड पे बैठे हैं या सोफे पे बैठे हैं और बेटा भी है और माँ भी है, तो बेटा क्या है, अम्मी मुझे पानी ला कर दो। ये कहाँ की बात है भाई, और कितने शर्म की बात है। इसका मतलब नौकरानी ही है फिर माँ को, मुझे कपड़े प्रेस करके दो और आप बैठे हैं सरकार, मेरे जूते पॉलिश करो और खुद बैठे हैं। तो ये है कुर्बे क़यामत की अलामत और निशानी। ये सारे काम खुद करने चाहिए। हाँ, जो नहीं हो सकता उसको भी आदाब में कि रोटी चले नहीं पका सकता, तो वो भी मुहज़्ज़ब तरीके से बंदा बयान करे और कहे, रिक्वेस्ट के अंदाज में, ना कि आर्डर के अंदाज में। हमारे यहाँ आर्डर चलता है, रिक्वेस्ट नहीं चलती। हमने पैसे लेने हो तो ऑर्डर करते हैं, रिक्वेस्ट नहीं होती। तो ये गुनाह है, इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। ये अदब के खिलाफ है, ये इताअत के खिलाफ है, ये रवैया वालिदैन के साथ रखना। और जब स्याह ऊंटों को चराने वाले लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे, मामूली लोग बड़े बड़े महल बना लेंगे, तो ये अलामतें हजूर ने बताई क़यामत की। और तो ये इन 5 चीज़ों में से हैं जिनको अल्लाह के सिवा कोई अज खुद नहीं जानता। फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तलावत की, बेशक अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है, वही बारिश नाज़िल फरमाता है, वही खुद जानता है कि माँ के पेट में क्या है, और कोई शख्स नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा, और ना कोई शख्स जानता है कि वो किस ज़मीन में मरेगा। बेशक अल्लाह ही बेहद जानने वाला और खूब खबर रखने वाला है। ये सूरह लुकमान की आयत है। फिर जिब्रील अमीन पीठ फेर कर चले गए। आपने फरमाया उनको वापस बुलाओ। तो साहबा ने फिर किसी चीज को नहीं देखा, उठते हुए देखा, जब चले गए तो फिर नहीं देखा कहाँ गए। तो पहले हुजूर ने कुछ नहीं बताया था, फिर आपने फरमाया ये जिब्रील थे जो लोगों को उनका दीन सिखाने आए। गोया यहां से ये पता चला कि जिब्रील अमीन तो ये सारा कुछ जानते थे,
लेकिन सवाल किए हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताकि लोगों को पता चल जाए कि दीन क्या है। गोया इस नीयत से सवाल करना ये जिब्रील की सुन्नत है ताकि लोगों को इल्म का पता चल जाए। उस्ताद से सवाल करना ये सुन्नत है, इससे इल्म को फरोग मिलता है, इल्म की इशाअत होती है। तो इल्म के दरवाजे खुलते हैं जब एक दूसरे से कुछ चीज़ें पूछी जाएं, समझी जाएं, जानी जाए। तो ये वही कर सकता है जो हमतन गोश होकर पूरी तवज्जो के साथ बात को सुनेगा, और अगर तवज्जो उसकी नहीं है तो फिर वो कोई सवाल इस तरह का नहीं कर सकता। उसके बाद एक और रवायत बयान कर लेते हैं। हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नुमान बिन बशीर कि मैंने हजूर को ये फरमाते हुए सुना है कि हलाल जहर है और हराम जहर है, और उनके दरमियान कुछ मुश्तबह चीज़ें हैं जिनको अक्सर लोग नहीं जानते। बस जो शख्स इन मुश्तबह चीज़ों से बचा उसने अपने दीन की और अपनी इज्जत की हिफाजत कर ली, और जो शख्स इनमें मुलव्वस हो गया वो उस चरवाहे की तरह है जो शाही चरागाह के गिर्द अपने मवेशी चराए, करीब है कि वो उसमें दाखिल हो जाएंगे। सुनो, हर बादशाह की एक मखसूस चरागाह होती है। सुनो, उस जमीन में अल्लाह की मखसूस चरागाह उसके हराम किए हुए काम है। सुनो, जिसमें एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो पूरा जिस्म दुरुस्त होता है, जब उसमें फसाद हो तो पूरा जिस्म फासद होता है। सुनो, वो दिल है, अगर दिल ठीक हो गया तो ठीक। तो ये चरागाह की जो तशबीह दी है, मिसाल दी है, ये हराम काम है। अब हराम काम जो है ये चरागाह यानी बादशाह की चरागाह, उसमें दाखिल होना ममनू है। अगर दाखिल होगा तो वो सजा पाएगा, इसलिए वो हराम कामों की एक चरागाह है। अगर उसमें कोई खुद को दाखिल करेगा तो वो नुकसान उठाएगा। और फिर आखिर में आका अलैहिस्सलाम का एक और फरमान, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ एक साहबी कहते हैं मैं इब्ने अब्बास के साथ बैठता था, वो मुझे अपने साथ अपने तख्त पर बिठाते थे। उन्होंने कहा तो मेरे साथ क़याम करो हत्ता कि मैं अपने माल से कुछ हिस्सा तुम्हें दूं। तो मैं उनके साथ 2 महीने रहा। फिर उन्होंने कहा कि जब अब्दुल कैस का वफद नबी वसल्लम के पास आया तो आपने पूछा ये कौन सी कौम है या ये कौन सा वफद है। उन्होंने कहा रबिया। आपने फरमाया ये उस कौम को जिस वफद को खुश आमदीद, तुम लोग शर्मिंदा होंगे ना नादम। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह हम आपके पास सिर्फ हुर्मत वाले महीनों में आ सकते हैं, हमारे और आपके दरमियान कुफार का कबीला मुज़र है। आप हमें कोई फैसला कुन हुक्म बताएं जिसकी खबर हम अपने पीछे छोड़े हुए लोगों को दें और इस पर अमल करके जन्नत में दाखिल हों। उन्होंने आपसे मशरूबात के बर्तनों के मुतल्लिक़ सवाल किया, आपने उन्हें इजाज़त दी, और फिर आपने फरमाया कि एक अल्लाह पर ईमान लाओ। आपने फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब क्या है। उन्होंने कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया तुम ये गवाही दो कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं है, और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज कायम करते रहना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना और माले गनीमत के 5वें हिस्से को अदा करने का हुक्म दिया। तो ये भी दीन सिखाने और बताने की चीज़ें हैं। ये इस तरह हज़ूर नबी मुकर्रम मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को मुख्तलिफ अंदाज और तरीके से बताते रहे। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहू अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।